will act across the cross section or along the axial position or in the vertical direction. If the forces will act on any beam along the vertical direction, then those load or forces are known as vertical loads or transverse load. And you know very well, when the load will act on the beam in vertical direction, then what happens? Then some type of stresses would be developed, that may be the tangential stress or shear stress or axial stress. In axial stress it may be tension or compression. Due to the tension or compression, the moment takes place, and due to the shearing of the surfaces, the shear force takes place. So there may have the two type of diagram in the case of beam. First one is the shear force diagram, and the rest one is the bending moment diagram, where the abscissa as well as ordinate will be plotted on the behalf of beam as well as shear forces, while the x-axis value would be same as the distance or length of the beam. Okay, now here you can see what is the definition of beam, how you can define the how you can define the beam. Here you can see the definition of the beam. A beam is a structural member used for bearing loads, and it is typically used for resisting vertical loads. For resisting vertical loads. Now see, here the definition of beam is given over here. A beam is a structural member. बीम क्या होता है? कोई स्ट्रक्चरल मेंबर होता है. मान लो कोई बीम है, इस तरीके से कोई बीम है, और बीम में कई तरीके के लोड लगेंगे. मान लो कुछ छत बना रहे हो तो छत में बीम डाले हुए तुम यहाँ, ठीक है, तो बीम में कई तरीके के लोड लगेंगे. तो वर्टिकल और ट्रांसवर्स लोड होता है. इस तरीके से वर्टिकल और ट्रांसवर्स लोड होता है जो बीम पे पड़ने वाले हैं. तो इन लोड को रजिस्ट करने के लिए, ठीक है, इन लोड को सपोर्ट देने के लिए, इन लोड को सहारा देने के लिए एक स्ट्रक्चरल मेंबर का यूज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बीम बोलते हैं. ओके, बीम बोलते हैं. ठीक. सो हियर यू कैन सी द डेफिनेशन ऑफ बीम. A beam is a structural member used for bearing loads. तो बीम क्या हुआ? बीम जो है एक स्ट्रक्चरल मेंबर है. क्या है? एक स्ट्रक्चरल मेंबर है. स्ट्रक्चरल मेंबर, स्ट्रक्चरल मेंबर है, और इसका काम क्या होता है? जो लोड इसके ऊपर लगने वाले हैं, जो लोड इसके ऊपर लगने वाले हैं उसको बियर करना. तो लोड बियरिंग इज द मेन मोटिव ऑफ बीम. लोड बियरिंग इज द मेन मोटिव ऑफ द बीम. ठीक. एंड वेयर इट बी यूज्ड? it is typically used for resisting vertical loads, shear forces, bending moments. Now see, this is the beam given over here. Suppose that a beam AB is given over here, and on this beam, suppose that this vertical load is acting on the beam, and at the point A the reaction RA will act, at the point B the reaction RB will act. So due to these vertical forces, this beam try to shear off. And which forces would be responsible for the shearing of the surfaces of the beam? The force is known as shear force. The force is known as shear force.
And if we talk about the axial direction of the beam, we talk about the axial direction of the beam. Axial direction of the beam का मतलब perpendicular to the cross section of the beam. इस तरीके से फोर्स लग रहा है तो ये क्या टेंशन में होगा, और जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्सेस लगेंगे तो कंप्रेशन में होगा. तो ये दोनों एक तरीके से इसको मोमेंट देंगे. ठीक है, ये क्लॉक वाइज, ये एंटी क्लॉक वाइज इस तरीके से मूवमेंट देगा ड्यू टू द टेंशन एंड कंप्रेशन. नाउ द सेकंड पॉइंट about the beam is, a beam is a structural member which is acted upon by the system of external loads at right angles of the axis. ठीक है, तो दूसरी डेफिनेशन कह सकते हैं बीम एक स्ट्रक्चरल मेंबर होता है. बीम एक स्ट्रक्चरल मेंबर होता है जिसके ऊपर जो है वर्टिकल लोड्स क्या करते हैं, एक्ट करते हैं. वर्टिकल लोड्स क्या करते हैं, एक्ट करते हैं. Now in these slides I will talk about the types of beams. Beams कितने टाइप के होते हैं. तो beams can be classified into many types based on the main criteria. They are as follows. अगर हम बात करें ज्योमेट्री की, अगर हम बात करें ज्योमेट्री की, ठीक है, क्या बोलो टाइप्स ऑफ बीम जो है उस पर हम उसके कई सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं. अगर हम पहले हम बात कर लें कि बीम की ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए, तो ज्योमेट्री के बिहाफ पे हम क्या कर सकते हैं, बीम को क्लासीफाई कर सकते हैं. ठीक है, हम बीम को क्लासीफाई कर सकते हैं ज्योमेट्री के हिसाब से. ज्योमेट्री के हिसाब से, इफ़ द बीम हैविंग द ज्योमेट्री दैट इज द स्ट्रेट लाइन, देन द बीम इज नोन एज स्ट्रेट बीम. Means we are talking about such type of beam which having a straight profile. If any beam having the straight profile, then definitely that beam is known as the straight beams. Suppose that this beam is given over here, this beam is given over here. Okay, ये कोई बीम है. अब इसकी जो प्रोफाइल है वो एक स्ट्रेट लाइन है. तो ये जो बीम होगा, ये जो बीम होगा कैसे होगा, स्ट्रेट बीम होगा. ठीक है, ये स्ट्रेट बीम होगा. कर्व्ड बीम, अब कर्व बीम मतलब कि हम ऐसी बीम की बात कर रहे हैं जिसका ज्योमेट्री क्या होगा, एक कर्व टाइप का होगा. ठीक है, जिसका ज्योमेट्री क्या होगा, कर्व टाइप का होगा. तो जब उसकी प्रोफाइल कर्व टाइप की हो गई तो कैसा बीम होगा, कर्व बीम होगा. दिमाग में आता है कि भाई स्ट्रेट बीम, कर्व बीम, ये अलग अलग टाइप के बीम होते हैं. तो एक्चुअली क्या होता है, जो बीम कई टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप के, मान लो एक 1 टाइप का है, दूसरा 2 टाइप का है. तो एक्चुअली में इनका यूज़ वहाँ पे होता है जिस तरीके से लोड को बियर करना होता है. ठीक है, फिर टैपर्ड बीम, क्रॉस सेक्शन में मान लो उसको, उसका प्रोफाइल क्या है, टैपर्ड है इस तरीके से. ठीक, ये हो गया टैपर्ड बीम. क्योंकि हम एक ऐसे बीम की बात करेंगे जहाँ पे बीम जो है उसका क्रॉस सेक्शन क्या है, टैपर्ड है. ऐसा है टैपर्ड, तो ये बीम क्या हो जाएगा, टैपर्ड बीम हो जाएगा. नाउ लास्ट पॉइंट मे बी on the shape of the cross section.
if the beam having a cross section is of T type, T टाइप क्रॉस सेक्शन अगर है, तो ये बीम है जिसका क्रॉस सेक्शन क्या है, टी टाइप का है। ठीक है, बीम और उसका क्रॉस सेक्शन क्या है, टी टाइप का है। इस तरीके से ऐसे पीछे भी जाएगा, यहाँ पे टी टाइप का क्रॉस सेक्शन है। तो ये जो बीम होगा कैसा होगा, टी बीम या बीम विथ टी क्रॉस सेक्शन। इफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम is having a type of T shape, then that beam is T type of beam. If the cross section of any beam is I type, the beam is known as I type beam. And if the beam having the cross section C type, then that beam is known as C type beam. बीम इन नोन है सी टाइप बीम, इस तरीके से। ठीक है, सी टाइप बीम। अब जितने भी टाइप के यहाँ पे हम बात कर लिए ज्योमेट्री वाले की, ये सारे जो ज्योमेट्री के बिहाफ पे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन के बिहाफ पे हम किस तरीके से बीम को डिफरेंशिएट या क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। From this images you can see the example over is given over here for the statically indeterminate and statically determinate beam. So on the behalf of equilibrium condition, we can classify the type of beam. As you can see over here, statically determinate beam, statically determinate beam. It is the first classified section of the beam that is on the behalf of equilibrium conditions. You know very well, for the dynamic equilibrium, the summation of all the forces along the horizontal direction should be 0. Summation of all the forces in vertical direction should be 0. Summation of moment should be 0. So these three equations should be fulfilled for equilibrium of any body. So if the number of unknowns is equal to the number of equilibrium condition equations, then that beam is the statically determinate beam. And if the number of unknown is not equal to number of unknown are not equal to the number of equation, then that will go to the opposite side of the statically determinate beam section, that is the statically indeterminate beam and unstable beam. So I think this image should be very clear to you. Suppose that स्टैटिकली डिटर्मिनेंट, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट, यहाँ पे आपको पहले हमको थोड़ा सा इसके बारे में बताना पड़ेगा। इंटरनल इनडिटर्मिनेंसी और ये सारी चीज़ें तो बाद की बात है, मोटे मोटे तौर पे हम आपको बता देते हैं कि डिटर्मिनेंसी इनडिटर्मिनेंसी को कैसे हम डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देख लिए कि अगर बीम को इक्विलिब्रियम कंडीशन के बिहाफ पे हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, तो पहला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्टैटिकली डिटर्मिनेंट बीम, स्टैटिकली डिटर्मिनेंट। ठीक है, एंड सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड वाला जो है स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट बीम, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट बीम। ठीक, एंड थर्ड अनस्टेबल बीम।
ठीक. Now from this image you can see, if we are talking about the statically determinacy and statically indeterminacy for a beam, then you can see, suppose that uh, we took a letter in English alphabet, small r, and suppose a small, what is a small r? Let us be assume that small r is the number of reaction and small n is the number of members in beam. Suppose that if the number of reaction is equal to number of reactions are equal to the number of members in the beam, then it will go in the favor of statically determinate beam. If the number of reaction are greater than the number of members involved in the beam, then this beam is known as statically indeterminate beam. Suppose that if we are talking about the last point related to the statically determinacy and statically indeterminacy for the beam, if the number of reactions is less than the number of members used in the beam, then beam will go into the category of unstable beam. So mostly the beam having the three type on the behalf of the equilibrium conditions. Suppose that if the number of reactions is equal to the number of members, then that beam is known as statically determinate beam. If the number of reactions is greater than the number of members, then the beam is known as statically indeterminate beam. If the number of reactions is less than the number of members, then the beam is known as unstable beams, where r is the number of reaction and small n is the number of members. Now for the equilibrium condition, you know very well that the summation of all the forces along the x direction and y direction should be equal to the 0. The summation of moment about any fixed point, that should be also equal to 0. It means if the number of unknowns are equal to the number of equations related to the equilibrium condition, then that means we are talking about the determinacy problem, and we are talking about the statically determinate beam. And I want to assure you, and I want to very clear to you all, that we all will study about the statically determinate beam in the engineering mechanics, whatever we have to cover the problems related to the beams. And if we are talking about the second type of the beam on the behalf of equilibrium condition, that is the statically indeterminate beam, and this portion we will discuss in the mechanics of solids in the coming semesters, while the whole problem related to the statically determinate beam would be discussed in this semester. So I want to proceed for the next slides. Now here you can see this the diagram. I think should be very clear to you, and here in this diagram you can see over here the some supports is given over here, and if we will solve we will draw the free body diagram for this type of beam, and definitely for this support, the one reaction will act in the upward direction, and the two reaction will act in upward as well as in the horizontal direction. So here is the number of members is 1, while the number of reaction is 3. So put small n is equal to 1 and the small r is equal to 3. Then if we are putting these values, then I think if r is equal to 1 in the first case and small n is equal to 1, then what happen, r की वैल्यू 1 रख दो यहाँ पे, ठीक है. उसके बाद n की वैल्यू भी 1 रख दिया आपने, r की वैल्यू 3, नंबर ऑफ रिएक्शन, तो 3 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा. तो ये केस किसका हो जाएगा, स्टैटिकली डिटर्मिनेंट बीम का. इसका हो जाएगा केस स्टैटिकली डिटर्मिनेंट बीम का.
ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला। इस केस में देख रहे हो यहाँ पे दो रिएक्शन, यहाँ पे दो रिएक्शन, 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो स्मॉल r = 4 दिया है और नंबर ऑफ मेंबर्स कितना है, 1 दिया है भाई। तो 4 इज़ ग्रेटर देन 3। ठीक, तो यहाँ पे जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन से ज़्यादा अननोन हो जा रहा है। तो अननोन जो है यहाँ पे, अननोन की वैल्यू जो है इक्विलिब्रियम इक्वेशन से ज़्यादा है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन से ज़्यादा वैल्यू है। तो ये केस जो है ये आपका जाएगा स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम में, इसमें जाएगा स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम में। ठीक है, अब ये चीज़ आपको अभी नहीं पढ़नी, ये चीज़ मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड वाले सेक्शन में पढ़नी है। थोड़ी सी और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये वाला फर्स्ट वाला एग्जांपल देखिए, सॉरी थर्ड नंबर वाला। थर्ड नंबर वाले में आपको दिख रहा होगा आई थिंक, यहाँ पे एक बीम है जो कि इस एंड पे भी फिक्स है और इस एंड पे भी फिक्स है। अभी सपोर्ट के बारे में बता देते हैं। आई थिंक अगर आप इस समय यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं तो सपोर्ट और ये सपोर्ट का और टाइप ऑफ बीम और जो भी लोडिंग होती है सब आपको पता है, बेसिक नॉलेज है। तो कोई क्वेश्चंस वगैरह ये जैसे r = 3 1, r ग्रेटर देन 3n और r <<3n, ये सारी चीज़ें जो है बहुत सिंपल है। आपको बस क्या करना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि फिक्स सपोर्ट है या रोलर सपोर्ट है तो कितने रिएक्शंस वहाँ पे लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो तुम, ये फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट है यहाँ पे, ये भी अपने जगह पे फिक्स है। ठीक है, तो फिक्स सपोर्ट में आपको क्या मिलते हैं, एक मोमेंट मिलता है, दो रिएक्शन मिलता है। तो इस केस में अगर आप देख रहे हो तो ये मोमेंट यहाँ पे मिल जाएगा, एक रिएक्शन इधर मिलेगा, एक रिएक्शन इधर, यहाँ पे मोमेंट मिल जाएगा, एक रिएक्शन इधर मिलेगा, एक रिएक्शन इधर। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर देखोगे तो रिएक्शंस कितने हो गए, 3 और 3 और 3, 3 + 3। तो नंबर ऑफ़ रिएक्शंस कितने हो गए, नंबर ऑफ़ रिएक्शंस की हम बात करें तो कितने हो गए भाई, नंबर ऑफ़ रिएक्शंस यहाँ पे हो गए 6। नंबर ऑफ़ मेंबर्स की बात करें तो कितने हैं, 1। तो r = 3n में वैल्यू रखो तो ये 6 हो जाएगा या 3n हो जाएगा। कहीं ना कहीं r की वैल्यू जो है 3n से ज़्यादा आएगी, तो ये क्या हो जाएगा, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम हो जाएगा। ठीक है, अब सपोज दैट एक और हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4। ये रोलर सपोर्ट है, यहाँ भी रोलर सपोर्ट है। रोलर सपोर्ट है, आपको पता है कि वर्टिकल डायरेक्शन में हमको रिएक्शन कर मिलता है। ठीक है, अभी बताते हैं रिएक्शंस कैसे मिलते हैं वर्टिकल में, ये सब चीज़ें बता देते हैं। एक टेबुलर फॉर्मेट में एक हमारे पास डायग्राम है एंड आई विल एक्सप्लेन दैट डायग्राम फॉर टू कैरी अ कॉन्सेप्ट फॉर द सपोर्ट सिस्टम involved in beam. This segment is fixed. It means कि we are talking about a cantilever beam. Now, the next interest should be from our side that how we can draw the free body diagram for this particular type of beam. Now, इसमें क्या 3 रिएक्शन हो गए, एक वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मोमेंट, एक रिएक्शन ये, एक रिएक्शन ये। तो 1 2 3 यहाँ पे 3 हो गए, 1 + 1 यहाँ पे 2 हो गए। तो टोटल कितने मिल गए हमको, 5। r = 5 और मेंबर्स कितने हैं, 1 2 3। मेंबर्स कितने हैं, 1। ठीक, तो
आर इक्वल टू 1 रख दिया तो 5 की वैल्यू जो है 3 से ज़्यादा है, तो ये भी क्या होगा, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम हो जाएगा। इन दिस केस यहाँ पे फिक्स किया हुआ है इन्होंने, इस पॉइंट पे ये फिक्स है, यहाँ पे भी क्या किया, फिक्स किया हुआ है। when these two ends are fixed, what will happen? So at these two ends I think uh, there are 3 reactions and there are 3 reactions, 3 plus 3 that is 6 रिएक्शन, तो ये हो गया अकेले के। उसके बाद यहाँ पे इन सपोर्ट है, 2 रिएक्शन इधर 2 रिएक्शन इधर, 3 3 6 4 10, तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस तो इस केस में कितने हो गए 10। मेंबर्स की बात कर लो, 1 2 3, मेंबर कितने हो गए 3, तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लो तो 10 की वैल्यू जो है 9 से ज़्यादा है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम हो जाएगा। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये वाला, ये क्या है, रोलर सपोर्ट, ये भी क्या है, रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट का आपको पता है कि 2 रिएक्शंस होती है, एक रिएक्शन होती है, तो एक वर्टिकल डायरेक्शन में इधर ये रिएक्शन देगा, नंबर रिएक्शन इधर देगा, और एन की वैल्यू क्या 1 है, तो यहाँ पे आर की वैल्यू जो है वो क्या आ गई, 2 आ गई, और इस साइड की वैल्यू कितनी आ गई, ये 3 आ गई, ठीक है। तो आर इज लेस देन 3n के केस है, रिएक्शन जब नंबर ऑफ मेंबर्स से, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन से कम हो जाता है, तो क्या होता है, ऐसे बीम को हम क्या बोलते हैं, अनस्टेबल बीम। तो अनस्टेबल बीम आपको ऐसे भी लग रहा होगा कि कोई अगर बीम है और दोनों एंड पे हम रोलर सपोर्ट रख दें, दोनों एंड पे रोलर सपोर्ट रख देंगे तो क्या होगा, ये यहाँ को मूव करने को फ्री होगी, ये यहाँ को मूव करने को फ्री होगी। इफ द two different ends of the beam is are free to move in horizontal direction, then what will happen, its instability will continue for the infinite time. So these type of beams are known as okay. I think statically determinacy and statically indeterminacy should be very clear to you. If we will talk about the statically determinate beam, then it means कि we are talking about those beams which would be discussed in your current semester subject, that is engineering mechanics. No, यहाँ देख सकते हैं पहले ही ये statically determinate beam. For a statically determinate beam, equilibrium conditions alone can be used to solve the reaction. It means R is equal to 3n की बात कर रहे हैं, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं। और सेकेंड वाला क्या है, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम। फॉर अ स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम, इक्विलिब्रियम कंडीशंस आर नॉट इनफ टू सॉल्व रिएक्शंस, एडिशनल डिफ्लेक्शन और मेथड टू सॉल्व द रिएक्शंस। इट मीन्स कि यहाँ पे हम मोस की बात कर रहे हैं, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की। स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम की जो है यहाँ पे होगी वैल्यू R इज इक्वल टू 3n होगा, और नंबर ऑफ रिएक्शन जो होंगे वो आपके नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन से ज़्यादा ही होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अब हम सपोर्ट की बात करेंगे कि कितने टाइप के सपोर्ट यूज़ होते हैं आपके बीम के लिए, ठीक है। तो सपोर्ट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये जान लें। सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि एक मीडियम जिस पे वेरियस टाइप ऑफ लोड को बियर करने के लिए जगह मिल जाता है, ठीक है। तो वो कई टाइप के सपोर्ट हो सकते हैं, सिंपली सपोर्टेड
सिंपली सपोर्टेड बीम, तो सपोर्ट कई टाइप के हो सकते हैं भाई। हो सकता है वो सपोर्ट आपको सिंपल तरीके से कोई लकड़ी का, मतलब मान लो कोई बेंच उंच बनाना कंक्रीट का, तो सिंपली उसको रख दिए तो दो सपोर्ट पे, तो इसको हम क्या बोल दिए, सिंपली सपोर्टेड बीम। तो ऑन द बिहाफ ऑफ सपोर्ट वी कैन क्लासीफाई द बीम्स। फर्स्ट वन इज द simply supported beam. Suppose that if the beam is supported simply, then that beam is known as simply supported beam. बीम की हम बात कर लेते हैं। जो बीम इस तरीके से, ठीक है, बीम है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक। अब इसको आपने सिंपली यहाँ पे रख दिया है, यहाँ पे सिंपली रख दिया है, यहाँ पे ऐसे ही सिंपली रख दिया, तो इसका ये मोशन तो ये फ्री होगा। ऐसे मोशन करने में इसको कोई वर्टिकल रिएक्शन यहाँ पे मिलेगा। तो ये कौन सा बीम होगा, सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया। सेकंड, द कैंटिलीवर बीम। एक बीम है जिसके एक एंड को हम क्या कर देते हैं, मान लो एक एंड को यहाँ पे फिक्स कर दिए, तो ये जो बीम होगा वो क्या होगा, जो बीम होगा ये क्या होगा, इस टाइप के बीम को हम क्या बोलेंगे, कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम बोलेंगे, ठीक। फिक्स्ड बीम, ये बीम है जिसको हम दोनों एंड पे फिक्स कर दें, तो ये बीम क्या हो जाएगा, फिक्स्ड बीम हो जाएगा। ओवरहैंगिंग बीम, if the beam having some area is extra portion to the last end of support, यहाँ से ये सेगमेंट जो एक्स्ट्रा है यहाँ पे, तो इस तरीके के बीम को हम क्या बोलेंगे, ओवरहैंगिंग बीम। कंटिन्यूअस बीम, if to maintain the equilibrium condition of the beam, and if we are using continuous loading, then it means कि we are talking about the continuous beam, as for example over bridges. Now here you can see uh, on the behalf of support we can differentiate our beam into the following some parts. In those parts, simply supported beam is one of them. So what is a simply supported beam? A beam with simple supports exactly at two ends of the beam, then it is called a simply supported beam. If we talk about the example for the simply supported beam, in the real world people would not tend to design anything with simple support, but one of the ancient monuments was built up by this concept. यहाँ पे देखो, जो अगर एंशियंट कंस्ट्रक्शन की हम बात करें, यहाँ पे देखिए ये जो स्टोन रखा हुआ है और यहाँ पे जो पत्थर है, यहाँ पे ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम का ही एग्जांपल है, ठीक है, सिंपली सपोर्ट है। तो अगर कोई बीम जो है उसको सिंपली प्लेस कर दिया गया और सिंपली सपोर्टेड है, एंड दैट टाइप ऑफ बीम इज नोन एज सिंपली सपोर्टेड बीम। Next one is the overhanging beams. These beams will also have supports, but one end or both end of the beam will be having some extension after the supports we can see in the below figure. क्या होता है, सपोर्ट देने के बाद भी जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट जो सपोर्ट से बाहर जाता है, तो ऐसे बीम को क्या बोलते हैं, हम कहते हैं कि ये ओवरहैंग बीम है, ओवरहैंगिंग। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक स्ट्रक्चरल मेंबर है, तो ये यहाँ पे सपोर्ट दिया गया है, लेकिन इसका इतना पोर्शन जो है इसके सपोर्ट से बाहर जा रहा है, तो ये क्या हो गया, ओवरहैंगिंग बीम का एग्जांपल हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हो अभी जो यहाँ पे थोड़ा सा इसका पोर्शन बाहर है, तो ये क्या हो गया, ओवरहैंगिंग बीम का एग्जांपल हो गया।
So the supports can be roller, simple or any other. ओवरहैंगिंग बीम में जो सपोर्ट है वो रोलर भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है या और कोई सपोर्ट भी हो सकता है। बस मैंडेटरी क्या है कि इसका जो सेक्शन है ये ओवरहैंग मैनर में होना चाहिए। नाउ बीम विद वन एंड हिंज एंड अदर एंड रोलर। तो एक बीम का ये भी टाइप हो सकता है कि एक एंड को हिंज कर दो, एक रोलर को कर दो, ठीक है। तो अभी हम आपको सपोर्ट का क्या कॉन्सेप्ट वो बताते हैं, बाद में बताते हैं। पहले लोड देख ले, बीम के टाइप देख लेते हैं, फिर हम कैंटिलीवर बीम की बात करेंगे। बीम विच हैविंग अ फिक्स्ड सपोर्ट ऑन वन एंड एंड द अदर एंड इज सेट टू फ्री, इट इज़ नोन एज कैंटिलीवर बीम। अगर एक एंड को हम फिक्स कर लेते हैं, एक एंड को फ्री कर लेते हैं, जैसे टेरिस देख रहे हो यहाँ पे, तो ये एंड इसका फ्री है और ये एंड इसका यहाँ पे क्या है, फिक्स है। तो ये जो टोटल जो बीम यहाँ पे पड़ी होगी उस बीम को हम बोल सकते हैं कि कैंटिलीवर बीम का एग्जांपल है। इसी तरीके से मशीन को देख सकते हो, ये इसका यहाँ पे एंड फिक्स है, तो ये क्या हो गया, कैंटिलीवर बीम का एग्जांपल हो गया। ये भी कैंटिलीवर बीम का एग्जांपल है। फिक्स्ड बीम ये पहले ही बता चुके, दोनों एंड में फिक्स होता है। ऐसे बीम को क्या बोलते हैं, फिक्स्ड बीम। A beam which having fixed supports on the both ends, it is named as fixed beam. You can see some animated and real example of these kind of the beams and how they are restricting the movement of the beam. And on the behalf of those movements, we can differentiate the beams into the various parts. Now from this slide you can see, you can also see over here the first row, this three diagram related to statically determinate and this diagram is related to the statically indeterminate beam. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स की, ठीक है। पहला सपोर्ट सिंपल सपोर्ट है, देन रोलर सपोर्ट, देन हिंज या पिन सपोर्ट, देन फिक्स सपोर्ट। तो जब एसएफडी बीएमडी हम पढ़ रहे हैं, यूनिट 2 पढ़ रहे हैं, तो यूनिट 2 में जब हम बीम के बारे में पढ़ेंगे या बीम के बारे में बीम ने पढ़ा क्या टाइप होते हैं, तो आपने देखा कि बीम को कई टाइप के सपोर्ट पे रखा जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने टाइप के सपोर्ट आपको पढ़ने हैं, कितने टाइप के सपोर्ट होते हैं। तो पहला सपोर्ट सिंपल सपोर्ट है, दूसरा रोलर सपोर्ट है, देन हिंज या पिन सपोर्ट है, देन फिक्स सपोर्ट है। तो 4 टाइप के सपोर्ट होते हैं, ठीक। एक एक को डिस्कस करेंगे, बट फर्स्टली you should be very clear to you that there may have some particular type of supports. First one is simple support, then roller support, then hinge or pin support, then fixed support. हिंज या पिन सपोर्ट दोनों एक ही चीज़ है, अलग नहीं है। वो जो हिंज सपोर्ट होता है वो अंदर ही अंदर वो पिन के थ्रू जुड़ा होता है, तो इसको हम पिन सपोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पहले डायग्राम देख लो, उसके बाद एक टेबल तुमको दिखाएंगे, उस टेबल से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, सपोर्ट्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड suitable reactions restricting force to the beams or any body, ठीक है। सपोर्ट क्या होता है, एक सूटेबल रिएक्शन प्रोवाइड करने के लिए एक मेंबर होता है, ठीक है। रेजिस्टिंग फोर्स प्रोवाइड करने के लिए एक मेंबर होता है, क्योंकि आप जानते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पे अगर हम बात करें न्यूटन्स थर्ड लॉ की अगर हम बात करें, तो एक अगर कोई बॉडी है इस तरीके से और वो सरफेस पे रखी हुई है, ठीक है, सरफेस पे रखी हुई है, ग्राउंड सरफेस पे, तो इसका कुछ ना कुछ वेट होता है, ठीक। और अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ, every action should be there should be an equal and opposite reaction,
ठीक है, opposite reaction. In this case the weight in this case the weight of the object mg is acting in downward direction, so reaction will act in upward direction. So in this case r is equal to the mg and equilibrium of body takes place. So for the equilibrium a resisting force is very important. Now here you can see the first support is simple support is given over here, roller support. If you have given the roller support to the beam for to establish the equilibrium condition, and that time support is used as a roller support, and it may be possible that while you are using roller support, then in that case it may be happen the reactions may take place in vertical direction, or reactions may take place in horizontal direction, or it may it is also possible that the resisting force will be in the form of moment. So it depends on that thing कि which type of support are using in the beam. Suppose that if we use simple support, then it may be happen that the reactions will act in upward direction only. When you will use roller support, then it is very clear that, and it is sure, then the reaction will be act in only upward direction, right? If the any type of beam is involved, in that case when the hinge support is taken place, then the reaction will act along the horizontal direction, the reaction will act in the vertical direction. If you are talking about the fixed support, then in the case of fixed support, resisting force there may have three type of resisting force. First one, the resisting force across the x direction, and second one is the y direction, and another one is the moment. इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम आपको एक ये चीज़ क्लियर है, दिख रहा है? यस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे हम इस टेबल में मोशन को दिखाएंगे, ये सारे मोशन है, और यहाँ पे हम सपोर्ट को दिखाएंगे, ठीक। सबसे पहले हम रोलर सपोर्ट की बात करेंगे। तो रोलर सपोर्ट में ये वर्टिकल मोशन को बता रहा है, कट कर रहा है, ठीक है। रोलर सपोर्ट और वर्टिकल मोशन को कट कर रहा है। तो सिंपली हम एक रोलर सपोर्ट बना लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से, ठीक। तो रोलर सपोर्ट के केस में क्या होता है भाई, कि जो सपोर्ट होता है ये हॉरिजॉन्टली टू एंड फ्रो मोशन करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड फॉरवर्ड और बैकवर्ड मोशन करेगा ये सपोर्ट, ठीक। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड मोशन करेगा, इसका मतलब जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये मोशन करने के लिए फ्री रहेगा, बट वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कोई मोशन नहीं होगा। ये क्लियर है? ठीक है, ये क्लियर है। तो इस डायग्राम में आपको बहुत सारी यहाँ पे दिख रहा होगा कि रोलर सपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, सपोर्ट अगर रोलर है तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं मिलेगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं मिलेगा, कट कर दिए, ठीक। उसके बाद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन मिलेगा। यस, बताए हैं अभी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको मोशन मिलेगा, ठीक। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन मिलेगा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मोशन को हम यस कर दिए, ठीक है। रिएक्शन पे नहीं जाते हैं, हम पहले मोशन की बात कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद सपोज दैट हम रोटेशन की बात करें रोलर सपोर्ट में। रोलर सपोर्ट में रोटेशन पॉसिबल है कि नहीं? यस, ऑफ कोर्स ये पॉसिबल है, रोटेशन हो सकता है। तो रोटेशन पे भी हम यस कर दिए, ठीक। अब हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ रोलर सपोर्ट में हमको मोशन मिल रहा है। तो हमको वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन मिल रहा है और रोटेशन मिल रहा है, ठीक। तो जहाँ जहाँ हमको मोशन मिल रहा है वहाँ पे हमको रिएक्शन नहीं मिल सकता। तो हमको कहाँ मोशन नहीं मिल रहा? वर्टिकल डायरेक्शन मोशन नहीं मिल रहा रोलर सपोर्ट के केस में,
इसका मतलब हमको केवल और केवल रोलर सपोर्ट के केस में केवल और केवल जो है ये मान के चलो, या ये पक्की बात है कि रोलर सपोर्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो केवल वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन हमको नहीं मिल रहा है, तो रजिस्टिंग फोर्स जो है केवल और केवल वर्टिकल डायरेक्शन में मिलेगा आर बी। यहाँ मोशन मिल रहा है, कोई रजिस्टिंग फोर्स नहीं मिलेगा, मतलब कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा। मोमेंट होगा, तो जब मोमेंट होगा तो इसमें कोई रजिस्टिंग फोर्स जैसी चीज़ नहीं होगी, तो यहाँ पे भी ये भी मोमेंट एज ए रिएक्शन फोर्स ये भी कंसिडर नहीं होगा। तो केवल रोलर सपोर्ट में एक रिएक्शन होगा आर बी। तो रोलर सपोर्ट में कितने रिएक्शन होगा भाई? एक रिएक्शन। तो रोलर सपोर्ट में केवल और केवल एक रिएक्शन होगा, ठीक है। रिएक्शन कितने होंगे? केवल एक होंगे। और सिंबल कैसे यूज करते हो रोलर सपोर्ट का? सिंपली सिंबल जो है इस तरीके से यूज करते हो, ठीक। केवल और केवल इसमें रिएक्शन कितने मिलेंगे? एक मिलेगा केवल रिएक्शन, जहाँ पे आर बी, ठीक है। रोलर सपोर्ट के केस में केवल एक रिएक्शन मिलेगा। अब हम देखते हैं दूसरा डायग्राम, देखते हैं हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट ले लेते हैं। हिंज सपोर्ट के केस में टेबल में देख रहे होगे तुम कि वर्टिकल मोशन कट है, नहीं मिलेगा। हॉरिजॉन्टल मोशन कट है, नहीं मिलेगा। रोटेशन, यस रोटेशन अलाउ होता है, तो रोटेशन मिलेगा। तो जो चीज़ जब मिलेगा तो उसमें कोई रेजिस्टिंग फोर्स नहीं मिलेगा। तो हिंज सपोर्ट के केस में आपको दो डायरेक्शन में मोशन नहीं मिल रहा है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, बट रोटेशन अलाउ है। पहले केस में क्लियर था, केवल रिएक्शन वर्टिकल मोशन में मिल रहा था, वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि वहाँ पर हमको वर्टिकल में मोशन नहीं मिल रहा था रोलर केस में। जहाँ मोशन मिलेगा भाई वहाँ रिएक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। अब हिंज सपोर्ट के केस में आपको मोशन जो है ये वर्टिकल डायरेक्शन में भी नहीं मिल रहा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी नहीं मिल रहा, और रोटेशन में मिल रहा है। तो हिंज सपोर्ट के केस में क्या हो जाएगा? आपको वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन नहीं मिल रहा है, ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन नहीं मिल रहा है। सिम्बोलिकली ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे हिंज सपोर्ट को। वर्टिकल डायरेक्शन में जब मोशन नहीं मिल रहा है तो भाई बात बताओ, तो रिएक्शन कहाँ मिलेगा? रिएक्शन कहाँ मिलेगा? रिएक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में हमको मिलेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन नहीं मिल रहा है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब मोशन नहीं मिल रहा है तो हमको रिएक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मिलेगा। और कह रहा है कि ये मोमेंट के लिए मोमेंट अलाउ करेगा हिंज सपोर्ट। मोमेंट जब अलाउ करेगा तो यहाँ पे हमको कोई भी मोमेंट से रेजिस्टिव फोर्स नहीं मिलेगा। तो हमको वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन मिलेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन मिलेगा। किस केस में भाई? हिंज सपोर्ट के केस में। तो हम देख लिए रोलर सपोर्ट के केस में हमको एक रिएक्शन मिला, और वो किस डायरेक्शन में मिला? वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक। हिंज सपोर्ट के केस में हमको दो रिएक्शन मिला, वो किस डायरेक्शन में? वर्टिकल डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक। रोलर हो गया, हिंज हो गया। अब एक आपका बचता कौन सा है? फिक्स्ड सपोर्ट। फिक्स्ड सपोर्ट बचता है। इन द केस ऑफ फिक्स्ड सपोर्ट, वर्टिकल में कोई मोशन नहीं मिल रहा, हॉरिजॉन्टल में कोई मोशन नहीं मिल रहा, मोमेंट में कोई मोशन नहीं मिल रहा। तो जब फिक्स सपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, तो फिक्स सपोर्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो हमको वर्टिकल में वो कोई मोशन नहीं मिल रहा, ठीक है। कट कर दो। हॉरिजॉन्टल में कोई मोशन नहीं मिल रहा है, ये भी कट कर दो। मोमेंट नहीं मिल रहा है, तो हमने क्या कर दिया? कट कर दिया। तो जहाँ मोशन नहीं मिल रहा वहाँ पे हमको रेजिस्टिव फोर्स मिलेगा। तो यहाँ पे इस केस में, फिक्स्ड के केस में हमको क्या होगा? फिक्स्ड के केस में हॉरिजॉन्टल में एक फोर्स मिल जाएगा आर एच, वर्टिकल में आर बी, और एक मोमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस डायग्राम में हम यहाँ से इस तरीके से अगर हम ड्रा करें तो हमको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। ये डायग्राम बहुत क्लियर है। डायग्राम दिमाग में रखो, कभी ये भूलोगे नहीं कि सपोर्ट में कौन कौन से रिएक्शंस मिलने वाले हैं। ओके।
Now the next topic related to unit 2 is the shear force. Before to discuss shear force, I would like to tell you about the type of loading. Okay, so before discussing the concept of shear force and basic definition of shear force, I would like to tell you about the type of loading. And after a discussion related to the type of loading, I will cover the topic related to the shear force and bending moment basic concept in the next lectures, would having the length 1 hour and 1.5 hour approximately. So in this video lectures I will teach you about the type of the loading. You know very well the various type of loads may act on the beams. ओके, आपको पता है कि जब बीम की हम बात कर रहे हैं, बीम की अगर हम बात कर रहे हैं, कोई भी बीम है यहाँ पे, ठीक है, तो उस बीम पे कई टाइप के लोड लग सकते हैं. हो सकता है उस बीम पे इस तरीके से एक एक पॉइंट पे लोड लगे, ठीक है, हो सकता है उस बीम पे एक एक पॉइंट पे लोड लगे, ठीक, या हो सकता है उस बीम पे लोड लग रहा हो, इस तरीके से लोड लगे, मान लो कुछ मीटर की लेंथ पे जो है पर मीटर लेंथ जो है यूनिफॉर्म लोड लगे और डिस्ट्रीब्यूशन भी उसका क्या हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है, अलॉन्ग द लेंथ जो है जो लोड डिस्ट्रीब्यूट है पर मीटर वो यूनिफॉर्मली हो. या ऐसा भी हो सकता है कि लोड जो है यूनिफॉर्म तो है बट हर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे उसका लोड वेरी कर रहा है, लेकिन पर मीटर इस लोड की वैल्यू जो यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्मली वेरिंग और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो सकता है, ठीक है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट लोड की. ठीक है, here you can see the definition for the point load. When a load acts concentrated at a definite point, then it is named as concentrated load or point load. ठीक है, जब कोई लोड जो है, जब कोई लोड किसी एक डेफिनेट पॉइंट पे लगता है तो उसको हम कॉन्सेंट्रेटेड लोड या पॉइंट लोड बोलते हैं. जब कोई लोड किसी एक पॉइंट पे केवल लग रहा है, डेफिनेट पॉइंट पे लग रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड लोड या पॉइंट लोड बोलते हैं. ठीक, यहाँ पे देख सकते हो ये एक बीम है, इसको सपोर्ट पे रखा गया है, ठीक है, सपोर्ट पे रखा गया है. तो इस तरीके से अगर ये लोड केवल एक पॉइंट के अलॉन्ग लगे, एक पॉइंट के अलॉन्ग लगे, केवल एक पॉइंट के अलॉन्ग, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट लोड बोलेंगे, पॉइंट लोड बोलेंगे, या क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड लोड बोलेंगे. ठीक है, ये देखो जैसे ये हैमर है और ये कोई पिन है, तो इसको जब हैमरिंग करोगे तो ये एक ही पॉइंट पे लगते जाएगा, एक ही पॉइंट पे लगते जाएगा. तो यहाँ पे एक पॉइंट पे चूँकि इस हैमर का लोड लग रहा है, तो यहाँ पे जो लोड लगेगा इस हैमर का वो क्या होगा, पॉइंट लोड रहेगा. ठीक है, तभी जो है पिन जो है एक जगह पे हमारी क्या हो पाती है, होल्ड करती है. नेक्स्ट वन इज द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का मतलब पहले तो ये समझ लो क्या बोल रहा है. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इट मीन्स जो लोड होगा वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, यूनिफॉर्मली होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. ठीक है, तो मान लो कोई बीम है, यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हो. ठीक, ये कोई बीम है यहाँ पे, ठीक है, इसको सपोर्ट दिया गया है, सपोर्ट की लेंथ या डायमेंशन दिया हुआ है, सपोर्ट दिया हुआ है, सपोर्ट पे फोकस करो. और ये कितना दिया हुआ है, ये आपका 1000 या 10,000 1000 मीटर दिया हुआ है. ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो लोड है वो लोड जो है वो क्या है, 1000 न्यूटन पर मीटर वेट इंटेंसिटी के साथ डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली. यूनिफॉर्मली का मतलब ये है कि हर एक पॉइंट पे जो लोड, यहाँ पे जो हाइट तुमको दिख रही है वो तुमको कांस्टेंट दिख रही होगी, तो हर एक पॉइंट पे लोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड
एक हाइट पे है बट पर मीटर 1000 न्यूटन इंटेंसिटी के साथ। तो हर एक पॉइंट पे लोड जो है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की बात करें, यहाँ इस पॉइंट की बात करें, इस वाले 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 पॉइंट की बात करें, तो सारे पर लोड क्या है, एक समान लग रहा है, ठीक है। और पर मीटर कितना लग रहा है, 1000 न्यूटन लग रहा है। तो ये पक्का है कि मतलब अगर ये 1 मीटर की लेंथ है, यहाँ पे 1 मीटर की लेंथ है, तो 1 मीटर की लेंथ में कि टोटल कितना फोर्स लग रहा है, 1000 न्यूटन लग रहा है। लेकिन 1000 न्यूटन कैसे लग रहा है, वो हर एक पॉइंट पे लोड जो है एक जैसा लग रहा है, ठीक है, एक जैसा हर एक पॉइंट पे लोड लग रहा है। और कुल मिला के 1 मीटर की लेंथ पे कितना लग रहा है, 1000 न्यूटन लग रहा है। तो ये क्या हो गया, हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो गया, ठीक। यहाँ पे देख सकते हो, a distributed load is a load which is spread or some length of a beam. The region it is measured in intensity with units, that is Newton per meter. If the intensity is constant along the length, then it is named as uniformly distributed load. अगर वेट इंटेंसिटी या कह सकते लोड इंटेंसिटी, इसको हम न्यूटन पर मीटर या किलो न्यूटन पर मीटर में बोलते हैं। ये अक्रॉस द लेंथ जो है, अक्रॉस द लेंथ, अगर लोड इंटेंसिटी अक्रॉस द लेंथ क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बोलते हैं। नेक्स्ट, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। Whenever the load distributed along the length of the beam varies in intensity uniformly according to some law, that it is named as uniformly varying load, or we can see some conventional figures. तो क्या कह रहा है, अब हम पहले यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की बात कर दी कि अक्रॉस द लेंथ जो है ये लोड क्या होता था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता था। अब क्या है, जो लोड है यूनिफॉर्मली तो होगा, लेकिन यूनिफॉर्मली उसमें वेरिएशंस होंगे, ठीक है, यूनिफॉर्मली वेरिएशंस होंगे। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, इस एग्जांपल की बात कर लो, तो हर एक पॉइंट पर जो है वेरिएशन हो रहा है, बट पर मीटर जो है, पर मीटर जो इसकी लोड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, एक जैसी होगी, ठीक है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मान लो W1 न्यूटन पर मीटर वेट इंटेंसिटी है, तो वेरिएशन इस पॉइंट पे हो रहा है, फिर इस पॉइंट पे हो रहा है, फिर इस पॉइंट पे हो रहा है, लेकिन पर 1 मीटर जो है टोटल वेट कितना होगा, लोड कितना होगा, W1 होगा। ये पक्की बात है, ठीक है। तो इस तरीके से यूवीएल और यूडीएल हमने पढ़ लिया। हम बात करते हैं कि लोड कैलकुलेशंस कैसे करेंगे यूडीएल का। तो सपोज दैट एक कोई बीम है, उस पर यूडीएल लग रहा है इस तरीके से, कितनी लेंथ पे लग रहा है, स्मॉल एल लेंथ पे लग रहा है, ठीक। और इसकी वेट इंटेंसिटी कितनी है, जो वेट इंटेंसिटी है, लोड इंटेंसिटी W न्यूटन पर मीटर है, ठीक है। तो 1 मीटर पर W लोड लग रहा है, तो L मीटर पर W इंटू एल लगेगा। तो ये टोटल इसका वर्टिकल डायरेक्शन में लोड हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। और ये कहाँ पे लगेगा, L/2 पे लगेगा, L/2 पे लग जाएगा। तो जो बीम आपकी L लेंथ की थी, तो L/2 पे आपका ये लोड लग जाएगा, और ये कितना लगेगा, W इंटू एल लगेगा, ठीक। इसी तरीके से यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड की बात करें, तो इसका एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मान लो ये L है, तो ये L हो जाएगा, हाइट कितना है, W है, तो ये W हो जाएगा। और ये लगेगा कहाँ पे, ये 1/3 बेस पे लगेगा। टोटल लोड कितना हो जाएगा, 1/2 L इंटू W लगेगा कहाँ, 1/3। अब सपोज डेट इसका मोमेंट वगैरह लेना है, तो मोमेंट लोगे, तो ये हमको पता है कि भाई ये 1/3 डिस्टेंस पे लग रहा है, ये 1/3 डिस्टेंस पे लग रहा है, 1/3। अब इसका कुछ तुम W इंटू L/2
ये तुमने निकाला, तो मोमेंट लोगे ये कितना है भाई, टोटल ये 5 है, तो मोमेंट लोगे W इंटू L/2 इंटू 5 - 1/3, इस तरीके से मोमेंट आप निकाल सकते हैं। तो हमको ये पता चल जाएगा यूडीएल में टोटल लोड कितना है, टोटल लोड कितना है, टोटल लोड, और वो कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, तो वो एज अ पॉइंट लोड हो जाएगा, कंसिडर हो जाएगा। तो उसके बाद हमको क्या होगा, उसकी FBD वगैरह निकालने में, FBD बना के उसके रिएक्शंस निकालने में क्या होंगे, आसानी होगी। रिएक्शंस हम जानते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए सिग्मा H सिग्मा V 0 कर देंगे, हमको रिएक्शंस वहाँ से फाइंड आउट हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।